इनको नदर कर्म होवे हृदय तना समाणी पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जपियो सारंग पानी कह नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। गौड़ी बैरागण महला पहला रैन गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए हीरे जैसा जन्म है कौडी बदलै जाए। नाम न जाने राम का मूड़े फिर पाछे पछताए रे। नाम न जाने राम का मूड़े फिर पाछे पछताए रे। रहाओ अनंता धन धरणी धरे अनंत न चाहया जाए। अनंत को चाहन जो गए से आए अनंत गवाए। आपन लिया जे मिलै ता सबको पागट होए। कर्मा उपर निबड़ै जे लोचै सब कोए। कर्मा उपर निबड़ै जे लोचै सब कोए। नानक करना जिन किया सोई सार करे। हुक्म न जापै खस्म का किसै वडाई दे। नानक करना जिन किया सोई सार करे। हुक्म न जापै खस्म का किसै वडाई दे। परम सन्मान योग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन पवित्र गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ। सतगुर जी की पावन गोद विच बैठ के अज दिन दे इस गुरमत समागम दे विच जो किसानी अंदोलन की जित की खुशी विच समुचे परिवार ने इलाके की समुची संगत के सहयोग नाल अज का यह समागम उलीकिया जिस विच आप जी ने बहुत प्यार नाल सब तो पहला गुरबाणी का सहज पाठ उसकी समाप्ति
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸੋਹਣਾ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹੁਣੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 156 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ। ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਏ ਆ ਉਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਦੂਜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਿਕਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਫਤਾਰ ਹੈ ਹਵਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਤੋ ਮਨ ਪਵਣੈ ਸੁਖ ਬਣਿਆ। ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਵਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੱਚੇ ਪੱਤੇ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬੂਰ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਫਲ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਚਲ ਹੈ ਇਹ ਮਨ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਹਲਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਕਰਹਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਊਠ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਊਠ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਨ ਹੈ ਕਰਹਲਾ। ਇਹ ਮਨ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਜੀ ਵੱਲ, ਮੌਲਵੀ ਵੱਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਜੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਜੀ ਘਰ ਘੋੜੀ ਨੇ ਵਛੇਰੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਖੂਹ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਿਆਨ ਮਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜੀ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘੋੜੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘੋੜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਰ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਖਲੋਤਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਹਲਾਲ ਦੋਏ, ਤੀਜਾ ਖੈਰ ਖੁਦਾਏ, ਚੌਥੀ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਮਨ, ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਵਤ ਸੁਣਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਮ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਤੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਟਿਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ?
तुसी किसी को 2 लाख रुपया लेना है, लाख रुपया लेना, तुहानूं देण आया घर तो अगला कहते हैं ना माड़ा जिहा हथ मार लो जी, गिण लो। तो जदों तुसी पैसे गिण रहे जी उदों भरा मन आसे पासे जांदा किते, तुहाडे पैसे गिणदियां ते तुहानूं कोई विचे बोले, तुसीं उहनूं की आंदे जी भला? बोलो सारे भाई, 1 मिनट तेरी गल मैं पा सुणदा। तो जे माड़ा भुल्लण लगे उहनूं कहंदे 1 मिनट रुक जा, मैं वेख लवां माड़ा जाइदा। उदों पूरा ते अज तक कदी किसी बंदे ने कहा जो मैं पैसे गिणदा उदों मेरा मन नहीं टिकदा। उदों तो जिहड़ा खिंडिया होया मन, 102 बुखार भी चढ़िया होवे बंदे नूं नोट गिण ला दिओ, उहदा ध्यान बुखार वाल जाना ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, भाई गुरदास जी का बचन है, जैसे मन लागत है लेखक को लेखे बिकै, हर जस लिखत न तैसो ठहरावई। जिदा का बंदे का मन दुनियावी हिसाब किताब च लगता, उनको आ चुक कलम ते आ चुक पेपर, गुरबाणी के 2 शब्द लिखते तो मैनूं लगता इक्को पंक्ति लिखण लगे ही, इक्को गल लिखण लगे उन्हें थक जाना तो वासी आउण लग पैणी, क्योंकि सानूं ये लगता इत्थों मैनूं मिलना की है। जिहड़े शब्द आप हुणे पाठ सरवण कीता है राग गौड़ी विच, गुरु ग्रंथ साहिब जी के 156 नंबर अंक ते विचार साझे करन तो पहला आओ अपने मन नूं जिहड़ा खिंडिया होया मन है इनू गुरु के शब्द विच जोड़न का यतन करिए तो बड़े अदब नाल फतेह प्रवान करो। कोई रसना फतेह तो वांझी ना रवे, तो गज के आखो साध संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ शब्द की विचार आरंभ करने तो पहला एक बार शब्द दियां तुकां दा रल के पाठ कर लईए, ताकि साडा मन गुरबाणी की विचार वास्ते तैयारी भी जा सके। सारी संगत बड़े प्यार नाल हाजरी लवाओ, फिर आप विचार साझे करते हैं। रैन गवाई सोए कै, रैन गवाई सोए कै, दिवस गवाया खाए, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है, हीरे जैसा जन्म है, वाह वाह, कौडी बदले जाए, कौडी बदले जाए, वाह वाह, रैन गवाई सोए कै, रैन गवाई सोए कै, वाह वाह, दिवस गवाया खाए, दिवस गवाया खाए, वाह वाह, नाम न जानिया राम का, नाम न जानिया राम का, मूड़े फिर पाछे पछताहे रे, मूड़े फिर पाछे पछताहे रे, वाह वाह, अनंता धन तरनी तरै, अनंता धन तरनी तरै, अनंत न चाहया जाए, अनंत न चाहया जाए, वाह वाह, अनंत को चाहना जो गए, अनंत को चाहना जो गए, से आए अनंत गवाए,
से आए अनंत गवाए। वाह वाह। आपन लिया जे मिले, आपन लिया जे मिले, तां सबको भागट होए, तां सबको भागट होए। वाह वाह। कर्मा उपर निबड़े, कर्मा उपर निबड़े। वाह वाह। जेलो चे सब कोए, जेलो चे सब कोए। नानक करना जिन किया, नानक करना जिन किया। वाह वाह। सोई सार करे, सोई सार करे। वाह वाह। हुक्म न जा पई खसम का, हुक्म न जा पई खसम का। किसे वडाई दे, किसे वडाई दे। नाम न जानिया राम का, नाम न जानिया राम का। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जिन्हां दे पवित्र बचन गौड़ी बैरागण राग विच जे शब्द आपां सारिਆਂ ने रल के गायन कीता। देखो किड्डा वधिया घरां दा माहौल बन जाए जे साडे घरां विच ऐदां बाणी गाई जावे, तां ऐदां बाणी दी बैठ के विचार कीती जाए। कदी समां हुंदा सी परिवारां विच कि दिन दी शुरुआत भी बाणी नाल, ते जदों रात आरंभ होनी दिन समाप्त होना, उदों भी अपने घरां विच सतगुर दी बाणी पढ़ी ते विचारी जानी। समाज विच टावें परिवार ने जिन्हां नूं खुद बाणी पढ़न दा शौक है। सतगुर ने बाणी विच बहुत प्यारी विचार दिती है। जो मछली बिन पानी है क्यों जीवन पावे। मच्छी नूं तुसीं पानी विचों बाहर कढ़दे हो, वो प्राण त्याग दिंदी है। सत्कारयोग भाई गुरदास जी जिहड़े गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज जी के रिश्ते वजों भतीजे लगते, ते गुरु पंजवें पातशाह गुरु अर्जन साहब महाराज जी के रिश्ते वजों मामा जी लगते। जिहड़ी बाणी नूं अज असीं नमस्कार करते हैं, इस बाणी नूं सब तो पहला लिखण दी सेवा प्राप्त हुई सत्कारयोग भाई गुरदास जी नूं। जदों सब तो पहला पोथी साहब की तैयारी की गई, जदों बाणी की तरतीब दी गई, वो लिखण की सेवा भाई गुरदास जी ने की। उस तो बाद जदों उन्होंने बाणी लिखी तो उस तो बाद भाई गुरदास जी ने दो रचनावां लिखियां, कबित ते वारां। हुण ये वारां ते कबित उन्होंने बाणी लिखण तो बाद च लिखियां। ये कित्थों समझ आउंदी है, क्योंकि उन्होंने कबित ते वारां विचों जिहड़ियां उदाहरणां ने वो बाणी नाल बहुत ज़्यादा मेल खांदियां ने। ये तो समझ आउंदी है कि पहला भाई गुरदास जी ने बाणी नूं समझिया ते जाणिया। जदों भाई गुरदास जी वारां लिख रहे ने, इहदा अर्थ उदों गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज तखत ते सुशोभित हो चुके ने, गद्दी की जिम्मेवारी लै चुके ने। यह जिक्र उन्हां दियां वारां चों मिलदा है। पंज प्याले, पंज पीर, छटम पीर बैठा गुर भारी, अर्जुन काया पलट के मूरत हर गोबिंद सवारी।
ਇਹਦਾ अर्थ यह है भी जदों ये पौड़ी लिखी जा रही है उदों तक गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज गद्दी की जिम्मेवारी लै चुके ने। उन्होंने दी लिखतां चों समझ आती है। तो सत्कारयोग भाई गुरदास जी ने इदां दे सैकड़े हवाले दे दे के मनुख नूं समझाउण दा यतन किया। उन्होंने अपनियां वारां विच एक वार है उन्होंने कि मच्छी दे परिवार वांग, उत्थे शब्द वरत्या मच्छी दे परिवार, परिवार शब्द वरत्या, कली मच्छी नहीं कहा, नाल मच्छी दे परिवार की गल की है। कहते मच्छी दे परिवार वांग जीवन मरण न विसरै पानी। मच्छी का परिवार कभी पानी तो बागी नहीं हुंदा। किवें भला? जदों तो मच्छी होंद विच आई है उदों तो पानी च रहिंदी है। ये नहीं मच्छी कहेगी चलो पुराणियां दा मजबूरी हो सकदा पानी च रहना, उदों गरीबी होएगी, हुण तां असीं बहुत डिवेलप हो चुके हैं, हुण कोई होर तरल पदार्थ लै आओ। मच्छी भावें किसी अमीर परिवार ने पाली है तो भावें किसी गरीब परिवार ने पाली है, भावें किसी टोभे की है तो भावें समुद्र की है, मच्छी का जीवन पानी ही रहना, उन्हें होर किसी तरल पदार्थ नाल कोई मतलब नहीं। जिवें अजोके समय बंदा सोचदा ना भी इन्ने मेरे को साधन आ गए ने, मैं सब कुछ आ गया, पर नहीं, ये साधन शरीर नूं सुख देने वाले ने। तुहानूं गर्मी लगेगी तुसीं एयर कंडीशन ला लोगे, सर्दी लगेगी तुसीं हीटर ला लोगे, पर जिहड़ी अंदर दी तपश है वो आ बाहर दी सर्दी नहीं दूर कर सकती। आ बाहर कनेडा धरती ते 1.5-2 फुट स्नो पै जाती है, आ बाहर कोरा पै जाता अपने जदों आपां फसलों च वेखदे हां। इन्ना कोरा पैण तो बाद जरूरी नहीं बंदे दे अंदर भी ये कोरा ठंड वरता देवे। इत्थे सतगुर दा वाक है, चंदन ठंडा हुंदा है, चंद न सर्द रुत मूल न मिटही घाम, शीतल थीवै नानका जो पंदड़ो हर ना। जियो तपत है बारो बार, बाहर इन्नी ठंड है, बाहर की ठंड तुहाडे अंदर नूं ठंडा नहीं कर सकती, अंदर नूं ठंडा गुरु की विचार ही कर सकती है। परमेश्वर का नाम, उहदी विचार, उहदे गुण। हुण अत की गर्मी है, लोध थले भी अग बल रही है, देग थले भी अग बल रही है, सीस ते रेता भी तत्ता पै रहा है, पर धन गुरु अर्जन साहब अंदरों ठंडे ने, अंदरों टिका विच बैठे ने। इत्थे बंदे नूं एयर कंडीशन रूम विच गुस्सा आ रहा हुंदा है, क्रोध आ रहा हुंदा है। क्यों? क्योंकि जै तन बाणी विसर जाए जो पक्का रोगी। पक्का रोगी शब्द पता क्यों वरत्या? जिन्हों बुखार चढ़े वो पक्का रोगी थोड़ा है। रात बुखार चढ़ता सवेरे लै जाता, सवेरे चढ़ता तो शाम को लै जाता, ये पक्का रोगी तो नहीं ना होया। मान लो कि लत्त बांह दुखती है, कि पेट च दर्द है, ये पक्का रोगी नहीं है। पक्का रोगी कौन है? जिहदे जख्मां चों पाक वहिंदी होवे, जिन्हों कोड़ हो गया होवे, नसूर बन गए उहदे जख्म। कई घरां च ऐसे मरीज होंदे ने, परिवार दे जी उहदे रूम दे विच भी जाण तो कई वारी कन्नी कतराउंदे ने, ते मूँहों नहीं कहिंदे पर अंदरों कहिंदे इहदे नालों तां पड़दा ही पै जाए। झाकी ला मेरे मालका, ये हालत साडे कोलों इहदी वेखी नहीं जाती। वो हुण जिहड़े जख्मां चों पाक वहिंदी है, जिहड़ा अंदरों कल्पदा है, जिहड़ा अंदरों दुखी हुंदा है, पातशाह कहंदे ने जिस हिरदे विचों सतगुर दी विचार निकल गई, वो हिरदा भी पक्के रोगी की तरह कुरलाउंदा है। तुसीं देख रहे हो समाज में आए दिन कोई ना कोई खबर छपदी है, फलाने थां ते बंदे ने सुसाइड कर लई, रेल थले सिर दे दिता, कोई रस्सा लैके पखे नाल फाह लै लिया, सब कुछ हुंदियां होइयां। वजह की है? क्योंकि अंदर 4 नदियां वह रही ने, हंस, हेत, लोभ, कोप, चारे नदियां अग। आ गर्दन तो उपरला हिस्सा जिन्हों असीं दिमाग कहने आ, पातशाह कहते इत्थे 4 नदियां वह रही ने, हंस, हिंसा। बंदा किन्ना हिंसक हो जाता है जदों जायदाद पिछे अपने सके भरा दा गाटा लाउण तुर पैंदे। सोच के वेखो एक बार, जिहड़ा बंदा कभी पैर थले कीड़ी आउण तो भी डरदा है, वो किन्ना हिंसक हो जाता है। अपने जियां दा ही कतल कर लगे एक बार नहीं सोचता। हंस, हेत, हेत कहते ने मोह नूं,
मोह एक दलदल है, मोह एक चिक्कड़ है। ध्यान ना सुनियो गल ताकि समझ पै जाए। सतगुर ने बाणी विच आख्या मोह नूं साड़ दे। तुहाडे विच कई गुरु प्यारे बाणी पढ़न वाले बैठे, किते बाणी च प्यार नूं साड़न बारे नहीं कहा, मोह नूं क्या साड़ दे। इसदा मतलब मोह औगण है ना। श्री राग दा वाक है जाल मोह, मोह नूं जाल दे, घस मस कर, इहदी शाही बना ला। जाल मोह घस मस कर, मत कागद, अपनी मत नूं पेपर बना ला। हुण तुसीं पुछोगे मोह ते प्यार च की फर्क है? फर्क आ ये है, चलो चमकौर साहब की गढ़ी चों गुरु गोबिंद सिंह महाराज निकलते ने, जे मोह हुंदा ते अपने वड्डे साहिबजादा अजीत सिंह ते जुझार सिंह नूं नाल लैके निकलते, दूजियां सिखां नूं कहंदे तुसीं इत्थे रहो। प्यार सी, दया सिंह, भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह ते भाई मान सिंह, ये तीन गुरु के प्यारे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के नाल निकले ने। पर अपने बिंदी पुत्र जिहड़े बिंद तो पैदा होए ने, जिहड़ा अपना खून है, उन्हां दीयां लाशां दे लागों दी लंघ आए ने। होएगा जिगरा दुनिया के अंदर एवें थोड़ा अल्लाह यार खां जोगी ने शब्द बोले सी कि करतार की सौगंध, नानक की कसम है, जितनी भी हो गोविंद की तारीफ वो कम है। एक मुसलमान की जुबान चो शब्द निकलने, चलो अपने की तो सारे तारीफ करते हैं, शायद वह खमियाजा भी उन्हें भुगतना पिया। इस्लाम च उहदे बारे कई बागी सुरां भी उठियां भी तू इस्लाम नूं मनण वाला गुरु बारे शब्द एडे वड्डे कह गया, तैनूं हजरत साहब ने अपने चरनां च थां नहीं देनी, तैनूं बिस्त नहीं मिलेगा, माफ़ी मंग ला जो लिखे। अल्लाह यार खां जोगी ने आख्या जो मैं लिखिया ये मैं इनूं तुसीं झूठा साबित कर दिओ, माफ़ी मंग लेनी। जो मैं लिखिया इनू झूठा साबित कर दो, मैं माफ़ी मंग लेना। तो रही गल चरना च थां दी, ना मिले कोई गल नहीं, जो मैं लिखिया है उधर चरना च थां नहीं मिलनी, इधर गुरु गोबिंद सिंह नूं अपने हिरदे च थां देण नूं तैयार ने। ये शब्द अल्लाह यार खां जोगी दे ने। एक मुसलमान दी जुबान विचों ये शब्द निकलने कितनी वड्डी गल है। अज असीं अपने उसे मालक दा दर छड्ड के पता नहीं थां थां ते कित्थे कित्थे मनुख तुरिया फिरदा। गुरदेव पिता महाराज सानू किन्ना प्यारा हलूणा दे दे के समझाउण दा यतन पै कर रहे ने, ते किन्नी प्यारी विचार दिंदे ने कि तू अपनी जिंदगी नूं किद्दां जीउणा है, किवें तू अपनी जिंदगी नूं समझण दा यतन करना है। हुण उत्ते शब्द वरते ने जाल मोह, मोह नूं जाल दे। ध्यान नाल सुणियो जिन्हें भी तुसीं मेरे भैन भरा वीर बुजुर्ग बैठे हो, सतगुरु जी मोह साड़ दे। हुण मोह की है, प्यार की है। प्यार ते मोह सौखा समझाना आपां। परिवार इकट्ठे रहिंदे आ, जिथे सांझियां परिवारां च ये दिमाग च ख्याल आ जाए, ये विचार आ जाए, मैं अपने पुत नूं चंगी रोटी बना के देवां, मेरे पुत नूं जायदाद वध मिल जाए, मैं अपने सके भरा दे पुत दा हिस्सा अपने पुत नूं दे देवां, ये मोह है। बाणियां दी नूं साड़ दे, सुखी होना चाहुंदा ते। प्यार की है? प्यार ये है कि जायदाद वंडण लग्या जो किसी ने तेरे ते जिम्मेवारी सुट दी, वंडण लगे अद्धा मरला अपने पुत नूं घट दई, ताकि जो कोई मिणती करे कवे ओ वेखो सरदार आल जे ते एडी वड्डी जिम्मेवारी दी सी, जो उन्हें जिम्मेवारी निभाई मिणती करा के वेखो तुहाडी अद्धी कनाल अद्धा मरला अद्धा किला जमीन ਉਹਦੇ बच्चे ਨੂੰ घट निकलेगी, क्योंकि उन्हें जो जिम्मेवारी निभाई जायदाद वंडण लगे अपने भरा के बच्चे ਨੂੰ वध ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? प्यार। मोज की है? लड़ाइयां कादियां घरां च, ਉਹੀ बच्चे ਜਿਹੜੇ एक दूजे के कपड़े पाउंदे ने। 10 मिनट लेट हो गया, माँ कहती रोटी खा ला, कहता नहीं भरा तो बिना रोटी नहीं खानी। इक्के थाड़े च भी रोटी खाते रहे भरा, हाइट इक्को जी सी, कपड़े भी एक दूजे के पाउंदे रहे, प्यार इक्को जिहा। अज एक दूजे वाल वेखना पसंद नहीं करते, क्यों? कभी सोच के वेखे केड़ा ऐसा वायरस आ गया, केड़ा ऐसा जहर फैल गया कि भरा भरा बोलण नाल तैयार नहीं।
1 साल 13 दिन साडे बुजुर्ग दिल्ली के बार्डर से बैठे ने। किसानी अंदोलन जितया, तुसीं आदी जित की खुशी में अज गुरु ग्रंथ साहिब जी की गोद में बैठे। मालक आप विच वरत्या, उन्हें अपने सारिਆਂ कोलों ये सेवा आप लई है। इस अंदोलन नाल कल्ले 3 काले कानून वापस ही नहीं होए, इहदे नाल सिੱਖੀ की विचार भी समाज दुनिया में फैली है कि यार सिੱਖ इदां दे हुंदे ने। लड़न अंदोलन आए होण ते लंगर ला के बैठे होण, लैन आए अपने हक होण ते राह जांदे नूं प्रशादा छकाउंदे होण। आउण वाले समय दे विच जिवें बाकी मोर्चों नूं दुनिया याद करती है, उदां इस अंदोलन की भी कदी चर्चा होया करेगी। तो क्यों जितया गया? क्योंकि इकट्ठे से एक दूजे के मोढे नाल मोढा जोड़ के तुरदे से। पर आ वेख लिया हुण यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा गाड़ी इलैक्शन आउणियां ने। बस मेरी एको बेनती है, मैं गुरु की हजूरी च एक शब्द पंजाब की हर स्टेज पर बोलदा, वोट पाउण लगे चेहरे जरूर चेते रखियो जिन्हां सरकारां ने तुहाडियां बुजुर्गां नूं 1 साल 13 दिन सड़कों पर बिठा छड्डिया। वोट पाउण लगे चेहरे जरूर एक बार चेते रख लियो। ये मेरा तरला है तुहाडे अगे। नहीं तो लखीमपुर लखीरी दियां उन्हां बच्चियां दियां लाशां, वो रमन पत्रकार 4 अपने पंजाबी परिवारों के बच्चे ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ उम्र के भी सन, भाई नछत्र सिंह, तो कभी सोच के वेखो किन्नियां 750 के करीब पंजाब लाशां गईयां। इत्थे किन्ना कुछ वापरिया। अज कुर्सियां दे मगर फिर साडा समाज उदां तुरिया फिरदा। मैं फिर बेनती करा, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी का वाक है, जाल मोह जाल दे। तुहाडे च कई गुरु प्यारे बाणी पढ़न वाले बैठे होने ने, प्यार नूं साड़न बारे बाणी च किते नहीं किया, क्योंकि प्यार गुण है। प्यार विच बंदा वंडदा है, मोह च बंदा खोंदा है। मोह नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी ने चिक्कड़ आखिया है। तित सरवण रहे पहले निवासा, पानी पावक तिने किया। अगे बोलो, पंकज मोह। पंकज मोह भाव मोह का चिक्कड़, पग नहीं चल। साध संगत जी, चिक्कड़ विच तुसीं किसी बंदे नूं कहो दौड़ ला के विखा, दौड़ लाउणी तो बहुत दूर है, चिक्कड़ विच बंदे कोलों तुरना भी मुश्किल हुंदा है। अज गुरु के रस्ते ते क्यों नहीं तुरया जा रहा बंदे कोलों? लीडर मगर किद्दां भज्जा फिरदा है? क्योंकि मोह का चिक्कड़ गुरु के रस्ते ते तुरन विच रुकावट खड़ी कर रहा है, रुकावट खड़ी कर रहा है। हम अंधले अंध बिखै बिखराते क्यों चालें गुर चाली। मैं किवें गुरु की चाल दे नाल चाल ला के तुरा? मैं अन्ना गुरु सुजाखा, मैनू दिसदा नहीं, क्योंकि मैनू मेरा मोह दिसण ही नहीं दिंदा। झबाल दे लागे घटना वापरी सी ना 1.5-2 साल पहला। एक बाप के 3 बेटे सन। 2 बेटे बाप नाल रहिंदे सी, एक बेटा अलग रहिंदा सी। बाप ने जायदाद वंड दी। मैं दसना चाहना कि किद्दां घर उजड़ते हैं। जिहड़ा अलग रहिंदा सी, एक दरख्त सांझी वट दे उत्ते सी। बाप जिवें आपां नूं आम आदत हुंदी है, जदों सर्दियां आउण वालियां होण आपां रुख छांगदे आ कि फिर जदों अगे बसंत रुत आउणी आ, करूंबलियां फुटणियां ने। उन्हें घरों लिया दातर ते रुख छांगण लगा। वो जिहड़ा पोता अड होया सी, वो आण के आंदा, बापू ये सांझी वट उत्ते रुख है, इनू ना छांग भी, जाने कि साझा है, भावें जायदाद वंडी गई है, रुख अपना साझा है। बापू कहता नहीं मैं छांगना जी। उन्हें जी खहबाजी हो गई। लागे दोनों पुत्र खेतों चो भी काम करते सी। उन्हें गुस्सा आया, अंदरों लिया गन कढ़ के ते उन्हें अपने प्यो नूं मार लगा। अगे दूजा भरा आ गया। दोनों भरावां की मौके पर मौत हो गई। एक भरा जेल चला गया, 2 भरा उहदे कोलों मर गए। जिदन उन्हां दा भोग सी ते पत्रकार ने खबर पता की लाई सी, आओ पै जे रुख कित्थे गए मनुख, आओ पै जे रुख
किथे गए मनुख। एक दरख्त छांगण तो इक्के मां की कुख तो पैदा होए पुत्रा ने दो नूं मार दिता ते तीजा जेल चला गया। कुख किहदी सुन्नी होई जी? इक्के मां दी। इक्के मां दे चिराग बुझे, ओहो ही दरख्त उत्थे रह गया। ये जायदादां जमीनां, जिन्हां जमीनां जायदादां दी आपां गल, कोई भी घर है जिथे अज आपां बैठे हाँ, इत्थे कदी साडे दादे पड़दादे सी, साडे लकड़दादे सी। हुण अज असीं बैठे, आउण वाले अगली पीढ़ी होएगी। पर बंदा गल वेखो किदां कर, इदां छाती ते हत्थ मार के। सतगुर दी बाणी कहदे, बंदिया तू पानी दा बुलबुला है, तू की है? पानी दा बुलबुला। ते बुलबुले बरखा विच किन्ने बनदे ते किन्ने नालों नाल टुੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ने। काश किते समझ आ जाए सानू, जे उदों ही बाप सियाणा हुंदा पिछे हो जांदा। कईयां घरां च बाप कहंदे, ना पुत्तरा आपां इस काम च नहीं पैना, ना ना अपना ही चिराग है। जे अड हुंदे आए ने बंदे, पर एक तरीका अज घरां विच मोह दलदल चिक्कड़ ये कित्थों है? काम क्रोध लोभ मोह हंकार की गल गुरु ग्रंथ साहिब च बार बार की गई है। उसका की मतलब है कि बंदिया अपने आप को बदल, अपनी सोच बदल, अपने विचार बदल। असी समाज में विविधता किहनूं कहने आ? दुकान ना चले, फसल घट होवे, पुत्र का विआह ना होवे, धी का विआह ना होवे, घर च कोई कलेश पै जाए, आपां कहने विविधता पै गई। सुनियो भगत रविदास जी का बचन, मेरी संगत पोच सोच दिन राती। मेरे मन की संगत माड़ियां नाल है तो मेरी सोच भी माड़ी होगी, क्योंकि संगत का बड़ा वड्डा असर पैंदा। जिहड़े लोग नशे करते हैं ना, कईयां दे बच्चे नशियां 'च पै जाते आ। तुसी उस व्यक्ति का नशा कदी नहीं छड़ा सकते ਜਦੋਂ तक तुसी उसकी सोसाइटी नहीं बदलते। संगत का बड़ा वड्डा असर है। एवं थोड़ा सानू गुरु ने आख्या सी, मेरे माधो जी सत संगत मिलै सो तरिया। जो मैं सत की संगत करांगा, चंगे विचार करांगा, चंगे मेरे ख्याल आउणगे, चंगी मेरी सोच बनेगी, तो मैं वधिया जिंदगी जीवांगा। बसंत की वार 3 पौड़ियां ने बसंत की वार दियां, गुरु अर्जन साहब महाराज जी की जिहड़ी वार पढ़ते हैं आप गुरु ग्रंथ साहिब कुल 22 वारां ने, 20 वारां पौड़ियां दे नाल सलोक ने, 2 वारां बिना सलोकां तो ने। एक रामकली राग अंदर भाई सत्ता बलवंत जी की वार, एक बसंत की वार जिहड़ी गुरु 5वें पातशाह जी की। वो शुरू होंदी है, हर का नाम ध्याए कै। सारे बोलो, हर का नाम ध्याए कै हो हरिया पाई। हुण परमेश्वर का नाम ध्याउण वाला बंदा, गुरु साहब कहते हो हरिया पाई। आप कदी अपने हुण आप कदी अर्थ विचारे भी रब का नाम लैण वाला बंदा, गुरु साहब कहते वो हरिया हो जाता, हरिया पाई। ये तो हरे होने का भाव की है? हरी चीज़ वो होंदी है जिहड़ी अपने धुरे नाल जुड़ी रहे, जिहड़ी अपने मूल नाल जुड़ी रहे। हुण दरख्त हरिया किहड़ा भला? जिहड़ा धरती नाल, बोलो सारे भाई, धरती नाल जुड़िया होया। जिहदा नाता धरती नालों टुट गया, वो दरख्त हरिया रह सकदा भला? कदी नहीं हरिया रह सकदा। हुण अज अपने खेतों में तूत हुंदे सी, बजुर्गों को पता, वड्डी उम्र के जिहड़े मेरे बापू की उम्र के बैठे आ, पिता समान, सर्दियां पैण वालियां होणियां ते तूत छांग लियाउने, कहने लियाओ बई टोकरे टोकरियां इहदे बना लो। वो भी कदों अज तूत छांगिया ते अगले दिन ही, उस दिन ही नाल ही उहदियां टोकरे टोकरियां बनाउण वाला तुहाडे घर आ जांदा सी। उहने टोकरे बनाते, टोकरियां बनातियां। हुण तुसीं तूत अज छांगो तो कहो 2 महीनों बाद दे टोकरे टोकरियां बनाने ने, बन जाएंगे जी? क्यों सासन बोलो भाई, क्यों नहीं बनगे भला? क्योंकि उदों तक वो टाहनियां सुक जानियां, जो तुसीं दा मरोड़ना तो उन्हें लक विचों टुट जाना। हरी टाहनी है, फ्लैक्सीबल है। तुसीं वेखदे हो जो हवा वगदी है तो हरी टाहनी ऐन झुक जाती आ। बाणी च पता की लिखिया? जैसी उपजे पेड़ ते, कबीर जैसी उपजी पेड़ ते तैसी निभे ओढ़।
जिद्दां दी कोमलता दरख्त छोटे चा जे किते उदां दी कोमलता दरख्त दे अखीर तक लिव जाए। हीरा किसका बपरा पूजे ना रत्न करोड़। हीरा की मुकाबला करूँ रत्न करोड़, ये चीज़ां दा मुकाबला। इत्थे गल दरख्त की नहीं हो रही, इत्थे गल इंसान की हो रही है कि जिद्दां दी दरख्त छोटे च कोमलता है, जे किते वो कोमलता बंदे च होवे कह लगे पुजे ना रत्न करोड़। दरख्त विच कोमलता हवा आउंदी वो लम्मे पै जांदा, हवा रुकदी फिर अपनी जगह ते आ जांदा। पर जदों धरती नालों लिंक टुट जाए, तुसीं वेखिआ जो दरख्त वड्डा हो जाए, अज नहीं झुकिया वो, हवा वगी झुकिया ही नहीं, उन्हें लक च मोछे वड्ड करके आ मारिया तुड़। वेखिआ बड़े बड़े शपैदे लक च टुट जाते। लागे कि निका जिहा दरख्त आंदा वेला मैं बच गया ही, आंदा तू किदां बच गया? आंदा मैं लम्मे पै गया, मैं झुक गया। इत्थे नाम हर का नाम ध्याए कै हो हरिया पाई दा अर्थ है जो परिवारां च बखेड़े खड़े होण। नहीं भी तेरी गलती हैगी, जे तेरी नहीं भी गलती हैगी तो माफ़ी मंग ला। परिवारों में कई बार होंदा ना, माँ बाप को पता होंदा कि एक पोता वध कसूर है, एक प्यो पोता कोई कसूर नहीं, पता होंदा ना सारा। पर कई बार वो बिना गलती तो भी माफ़ी मंग लेंदा, तो एकदम दूजा सोचता शायद मेरे तो डर गया, जे तो माफ़ी मंगी उन्हें सोचा मेरे तो डर गया। पर प्यो बैठा पासे हस रहा सी, आंदा कमलिया डरिया नहीं, लड़ाई टाल गया। बोलो जी की आंदा वो? लड़ाई टाल गया, डरिया नहीं, वो तेरे नालों सियाणा है। उन्होंने पता सी जे इत्थे मैं अड़ जाना तो मेरी इस अड़ ने जिवें दरख्त नूं लक चों तोड़िया ना, साडे परिवार दे दो हिस्से कर देने ने, साडे परिवार दा लक तोड़ देना है। श्लोक वारां ते वधीक तां बेनती करी दी बाणी पढ़िया करो। समा बहुत है साडे कोल, उत्थे ताश खेड लईए, उत्थे आ गल्लां कर लईए। जिन्ना असीं पोलीटिकल लोकां दे मगर झंडे चुकी फिरदे हैं ना, अद्धा पौना घंटा किते असीं अपने बापू दी ताबिया बह के गुरु दी विचार शुरू कर दईए ना, सानू आत्मक आनंद इन्ना प्राप्त होएगा। सानू समझ आएगी एक महल्ले में एक सिख परिवार रहिंदा ना, 15 परिवार दूजे रहिंदे आ, वो तुहानू पुछण आउणगे जिंदगी जीउण दा तरीका सिੱਖਿਆ किहदे कोलों? तो फिर तुसीं मान ना कहोगे मैं अपने गुरु को सीखिया। भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर। जो बाणी दियां तुकां बोलींदियां कई स्रोते मूँह वाल वेंदे आ, वो तो समझ आ जाती आ कि मैं कई साल गुरुद्वारे गया पर मैं खुद बाणी पढ़न की कोशिश नहीं की। आप बाणी पढ़ो, आप समझो। पुराने समझ सफरी स्वरूप होंदे सी छोटे। तुसीं निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ कभी ध्यान नाल वेखियो, उन्होंने इधरों सरी साहब ऐ नूं पाउंदे ने ते एक इधर उन्होंने होगा थैली, वो बाणी की पोथी वास्ते होंदी सी। जो बाबा बोता सिंह बाबा गरजा सिंह वेले दे सिखां दा इतिहास पढ़दे आ, जंगलों में विचारियां कोल कितना भी टाइम हुंदा होएगा, पर बाणी पढ़ते सी, बाणी विचारते सी। अज असीं सतगुर की बाणी तो कोहां दूर चले गए, कोहां दूर, बहुत दूर जा वसे। बाणी पढ़नी विचारनी ते रोज़ अपने आप नाल लड़ना। जो बाणी च लिखिया ना, जाको हर रंग लागो इस युग में, सारे बोलो सो कैयत है। दो किस्म के सूरमियां का जिक्र है गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च। एक सूरमा वो है जिहड़ा शास्त्र लैके, जिवें बाबा दीप सिंह जी का जिक्र हो रहा सी मेरे तो पहला, मैदान जंग में दुश्मन नाल लड़दा है। बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह मैदान जंग में जूझते। सरदार हरि सिंह नलूआ, सरदार शाम सिंह अटारी वाला, अकाली फूला सिंह, जिन्हों के असीं नाम बड़े मान नाल लैंदे आ, एक वो सूरमे सी। एक दूसरा भी सूरमा है बाणी च लिखिया, वो किहड़ा? जिहड़ा अपने आप नाल लड़दा है, जिन्हों अपने आप नाल जंग करनी आ गई। जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कैयत है सूरा। आत्म जिने सगल वसता कै, जा का सतगुर पूरा। जो जन लूझे मने स्यों, से पूरे
प्रधाना जिन्हों अपने मन नाल लड़ना आ गया, बाणी कहती असल प्रधान वो है, असल आगू वो है। हुण मन नाल किदां लड़ना? मान लो तुसीं डॉक्टर कोल गए, डॉक्टर ने तुहानूं कहता तेरियां बीमारियां ज़्यादा वध गईयां, तेरे अंदर फैट बहुत है, तू परौंठे ना खाया कर, ज़्यादा तलियां चीज़ां ना खाया कर, मिठा ना खाया कर। उन्हें कई गल्लां दसदियां आ तेरे लिए जहर है। हुण मान लो तुसीं किसी दे घर गए, उन्हें तुहाडे गाड़ी तरह तरह के पकवान लिया के रख दिते, अगला तो कहता ही आ, अगला वो भगत करता भी खाओ जी, इदा कहते जी खाओ जी खाओ। उत्थे हुण तू तेरे कोल जुबान है, तू कह सकदा वेखो जी मैं नहीं खाना। उत्थे तैनूं अपने अच्छा ऐसा नहीं भी जिन्हां दी शुगर बहुत हाई है उन्हां दा मिठा खाण नूं जी नहीं करता, सगों उन्हां दा जी दूजियां नालों वध करदा है। पर वो की आंदे आ, ना भाई मैं नहीं खाना। वो अपने आप ना उधार करते, जिवें वो कहानी आउंदी है ना, एक बंदा तुरिया जा रहा सी इदां ते जलेब निकल रहा सी दुकान ते, बड़े वधिया जलेब ते महक पई जलेबां दी, ओहदी जदों नासां रही ब्रेन तक गई, कहंदा जलेबियां बड़ियां कमाल दियां निकलदियां खाइए। तो दुकान वाल नूं तुर पिया, पर हत्थ मारिया भी पैसा तो कोई है नहीं। तो दुकानदार ने दूरों वेख लिया भी ये बंदा दुकान वाल नूं आउंदा सी, एकदम खलो गया, कहंदा की गल भाई? कहंदा जी जलेबियां खाण नूं जी करदा। कहंदा खा ला। कहंदा पैसे है नहीं। बंदा की आंदा पैसे है नहीं। कहंदा आ जा लै जा जलेबी, पैसे कल दे दी। दुकानदार ने कहा भी जे पैसे खणो नहीं तू खांदा तो खा ला, कल पैसे दे दी। फिर दुकान वालों तुर पिया, फिर एक पौड़ी चढ़ के ला के जाके फिर मुड़ पिया। कहंदा भी की गल है वापस मुड़ गया? कहंदा हुण मैं सोचा तुहाडे नाल जो उधार करना अपने मन नाल ही उधार कर लेना, तुहाडे नाल उधार करूँगा, रात मन चाहूगा 5 रुपये देने उहदे, टेंशन सोऊंगा, ये नाल अपने मन नाल ही उधार करना। कभी एक अद्धे दिन ना अपने मन नाल उधार करके वेखियो, सामने दा बोतल पई होवे, उधर घर वाली भी ना कहे, माँ दादी प्यो कोई किसी वाल ना वेखी, अपने आप नाल गल करी। जिदन बंदा अपने आप नाल लड़ना शुरू करता है ना, नशा वो बन्ने बन्ने खिलार दे। वो कहता ना भाई हुण नहीं, हुण इन्हां बाजियां चों आपां पार हो गए, हुण नहीं। वो जेड़े अपने मन नाल लड़ना नहीं ना जानते, उन्हां दियां घर वालियां विचारियां कहणगियां तू सौं खा ला, इनूं सौं पवा दो। वो सौं लीडरां ने नहीं खाधी, वो बोलो बोलो गुरु के प्यारे हो, अगलियां गुटके फड़ फड़ के सौंहां खादियां, मुक गया मुकाता नहीं। जे तुहाडे दिमाग च ये आ कि इत्थे नशा है, शायद विदेश मैं पुत भेजूँ मेरा बाजू, ये भुलेखा दिमाग चों कढ़ दे। जिन्नियां कंट्रियां दा मैं पानी पीता, वैनकूवर चले जाओ, मेरा मित्र है फिरोजपुर के इलाके का, उन्होंने बेचारे नूं वैनकूवर छड़ के कैलगरी जाना पिया सिर्फ इसे करके नशा है। ये भुलेखा दिमाग चो कढ़ दिओ। जिन्हें बचना उन्हें यूपी उत्तराखंड पंजाब च भी अपने आप को बचा लेना है, जिन्हें नहीं अपने आप को बचाना उन्हें विदेश जाके भी अपने आप को नहीं बचाना। चलो इत्थे तो मन्निया जी सरकारां विखाउंदियां, बाहर अमेरिका के बार्डर तो एक पंजाबी जोड़ा करोड़ों की हीरोइन उन्होंने को फड़ी गई सी। कभी सर्वे करके वेखियो, पुछियो पता नहीं किन्ने नौजवान नशियां की तस्करी करते बाहर भी जेलों च बैठे ने। वो भले जिहड़े लाहौर भैड़े, बोलो जी वो पिशौर भी भैड़े। ये आदत बड़ियां गंदियां होंदियां ने, लड़ना अपने आप नाल है। तुसीं वेखो कईयां बंदियां दा लागे शराब की दुकान हुंदी है, वो अगले बाणी पढ़ते आ, तो कईयां दी कंध दे नाल गुरुद्वारे की कंध जुड़ी हुंदी है, वो गुरुद्वारे मत्था टेकण नहीं आउंदे। समझ आ गई? बोलो भाई। एग्जाम्पल देन लगा, हुण सुनियो ध्यान नाल। कमल फुल चिक्कड़ चुगदा, डड्डू ਉਹਦੇ पैरों च रहिंदा, बिमल मझार बसस निर्मल जल अमृत, बिमल मझार बसस निर्मल जल अमृत ना लक्सरे, दादर डड्डू तू कवे ना जान सरे। हे डड्डू तू जानदे ही नहीं, भगस सुबाल बसस निर्मल जल अमृत ना लक्सरे। तू कदी
कमल फुल का स्वाद ही नहीं माणिया, जाला ही खाई जाना 24 घंटे। इत्थे गल डड्डू की हो रही, गल तो मेंढक का लिया, इत्थे दादरदार तो डड्डू है, तो डड्डू ने किहड़ा गुरुद्वारे आउणा? बोलो जी। इत्थे मेरे मन डड्डू नूं कह रहे गुरु नानक साहब, मेरा मन डड्डू, मेरा मन मेंढक। तो डड्डू की करदा? चिक्कड़ च जाला खाई जाता, वो उत्ते कमल फुल उगया, तो कमल फुल के मुकरान ते भौरा रस लैके आओ गया, आओ गया, आओ गया, तो डड्डू जाला ही खाई जाता। समझ आ रही प्यारिओ? गुरबाणी की विचार है ये, वो गुरु ग्रंथ साहब की विचार है जिन्होंने असीं आण के नमस्कार करते हैं। जिथे गुरु साहब जी, भाई गुरदास का वाक है, रतन मणि गल बांदर है कि कीम ना जाने। रत्ना की मणि तुसी बांदर के गल च बन दो, वो किते अमीर बन जू, वो तो खेड ही सकता वो नाल। रतन मणि बल बांदर है कि कीम ना जाने। कड़छी साव ना संभले, भोजन रस खाने। इको कड़छी खीर च भी फेरी दी है, दाल च भी, दही च भी कड़छी फिरदी है। कभी कड़छी नूं पुछ के वेखो, 10 खीर च मिठा किन्ना? हाँ जी, दाल च नमक किन्ना? दस दे। कड़छी साव ना संभल है, भोजन रस खाना है। डड्डू चिक्कड़ वास है, डड्डू चिक्कड़ च ही वास करदा, पर कमल इन्ना समझाने उन्होंने कमल फुल की सारी नहीं हैगी। नाभ कथूरी मिर्ग तन मर मुक्के आने। गुज्जर गो 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 कहते गां नूं, रस कहते दुध नूं। गुज्जर गो रस वेच के खल सूड़ी आने, ਉਹਦੇ बदले खाल तो सूड़ी ले आंदा। मैं ना गुज्जर तो फिर चंगा, दुध वेच के खाल सूड़ी तां लिया भी कल दुध होर दऊ। कई दुध वेच के शराब ले आते। वो बोलो भाई, अच्छा जो 4 लीटर घर दुध है न्याणिਆਂ ਨੂੰ पीण ਨੂੰ दिता, वो वेचता तो अपने पूए का प्रबंध कर लिया। सिख रहत मर्यादा पढ़ो, उहदे च लिखिया है, सिख अपने पुत्र धी दे आनंद करके ना नशा पीवे तो ना नशा पियावे। असीं तो यार पीने आ। ये मैं सैकड़े वारी उदाहरण दित्तियां। हर बंदा अपना प्रोडक्ट वेचदा तो उसकी तारीफ करदा, उसकी वडियाई करदा कि लोग खरीदण। नशे की बोतल ते की लिखिया हुंदा? ये सेहत लई, उच्ची बोलो भाई, हानिकारक है। और सेहत लई हानिकारक है। जवाई ते सौरा कट्ठे बह के पी रहे, तो गुरुद्वारे भाई को अरदास कर रहा, महाराज सानू तंदुरुस्ती बख्शो। उच्ची बोलो भाई। हुण जे सद्या तुहानू सुनना तो पैना। जहर पी रहे आ तो ग्रंथी से नूं कहंदे तू अरदास कर कि सानू सेहत जाबी बख्शो। इदां हो जूगी? समझना पैना सानू। असीं नशे आप जहर पी रहे हैं। जो कुदरत ने पैदा किया, मान लो कुदरत ने गन्ना पैदा किया, हाँ जी, इनू गन्ने नू चूपो, इहदा रस कड्डो, शक्कर बनाओ, गुड़ गुड़ घर च रखो। माँ भी खा सकती, धी भी खा सकती, घर वाली भी खा सकती, बापू भी खा सकता ना। अजे तक ये अमृत है। जदों इनू बंदा ये अपनी सोच पाउंदा ना, बोलो पता ही हुण सारियां गल्लां मेरे कोलों ना खवाओ। जदों ये अपनी सोच पाउंदा, फिर इनू जदों जहर बनाउंदा। हुण दस, ये धी दे पीण दे लायक हैगा तो गोड़ी सी। ये उदों धी दे खाण पीण दे लायक सी जदों तू अपनी मत नहीं सी कसोड़ी। ये जो कुदरती सी, गन्ना सी, शक्कर सी, गुड़ सी, ये चीज़ां सी। साडे टलदे नहीं। विदेशों भी जा के कईयां दे घर फट गए। असीं टलदे नहीं आ। विदेशों अपने घरे ही कढ़ते सी, घर में अग लगी, लकड़ का घर से, मुड़ के इंश्योरेंस मंगते आ, आते ये नहीं मिलनी भाई। वो जो वेहदे आन के भी तो भाणा ही होर वापरिया। माफ़ करना, एक कसूर साडे अपने आ। अच्छा फिर की कहते इहदा फर्क की पैंदा? फर्क क्यों नहीं पैंदा बई? पीण तो पहला वो डैडी जी कहंदा, वो पुत्र जी कहंदा। जदों अंदर चल जाती वाह वाह, फिर भला प्यो डैडी पुत्र शब्दावली वो रहिंदी आ।
फिर कई अद्धी रात ही अगले कुट के कढ़ते भी खौरू पाਉਂਦਾ है। कदों समझांगे असीं कोई यार साडे धक्के नाल मूँह च नहीं पाਉਂਦਾ। अच्छा गुरु नानक साहब का सूही राग च एक शब्द है, कई पुछते आन के सानू बाणी च लिखिया कि नशा नहीं पीना चाहिए। मैं कहा बाबे नानक ने आख्या आओ जोगी कहते गुरु नानक साहब नूं महाराज आ तुसीं भी पीओ। जोगी नशा करते सी आम, जोगी लोग नशा करते सी आम। पता क्यों करते सी? जोगियां दे दिमाग सी वो नशा इस हिसाब नाल पींदे सी भी नशा पी के ना अह सुरत टिकदी रब नाल। जिवें साडे कई बंदे ने पुछो तू क्यों पीना, कहंदा मैं करजा देना तां पीना, टेंशन बड़ी मैनूं। अच्छा पीण नाल करजा लै जांदा? आंदा नहीं, चेता भुल जांदा भी 5-7 घंटे मैनूं चेता भुल जांदा भी मैं किहड़ा किसे दा कुछ देना है। साड़ियां दलीलां वेखो, तू क्यों पी रिहा, मैनूं खुशी बड़ी है, तू क्यों पी रिहा, मैनूं सोग बड़ा। माफ़ करना जे गलत है। तो गुरु नानक साहब कह लगे जोगी लोगो वो जिहड़ा तुसीं नशा पींदे हो इहदा नशा किन्ने क दिन रहिंदा भला? वो कहंदे जी जो सवेरे पीए तो शामी लै जांदा, शामी पीए तो सवेरे लै जांदा। कहंदे फिर मैं तुहानूं दसदा एक नशा जिहड़ा बंदा पी ले तो मुड़ के नशा लैंदा ही नहीं। कहंदे वो किहड़ा? कहंदे शब्द मैं तुहाडे वाले वरतांगा। गुरु साहब जी कहते गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर धावै। गुड़ कर ज्ञान, ज्ञान का गुड़ बना लो, यानी कि ज्ञान गुड़ की जगह ज्ञान रख लो। ज्ञान केड़ा भला? ज्ञान ज्ञान च भी फर्क हुंदा जी। वो ज्ञान जिहड़ा तैनूं चंगा इंसान बनावे, ज्ञान खतरनाक भी हुंदा है। किवें भला? तुसीं लॉक ला गए अपने घर नूं ते काहदे नाल खोलदे लॉक आपां? ताला। ते चोर बिना चाबी तो खोल लैंदा। ज्ञान हैगा ना उहदे कोल, पर यह ज्ञान चंगा कि माड़ा? बोल के तुसीं बोलो भाई। डॉक्टर को इलाज कराउण गया गरीब परिवार, चीर फाड़ करके उसका गुरदा कढ़ के दूजे नूं वेचता। गबन हो रहे हैं ना बड़े बड़े। हुण आपां नूं अपनी बॉडी बारे थोड़ा पता मेरी बॉडी चों की कढ़िया ते की पाया। हुण ये ज्ञान नाल ही कढ़िया ना, पर यह ज्ञान खतरनाक है ना। ये ज्ञान समाज का भला करने वाला तो नहीं। ज्ञान हो जिहड़ा इंसान नूं खूबसूरत ते चंगा बनावे, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे होवो चाकर सच। वो ज्ञान लै जिंदगी जिहड़ा तैनूं अंदरों बाहरों सच्चा बनावे, जिहड़ा तैनूं वधिया बनावे, जिहड़ा जीवन निर्मल बाहरों तो निर्मल, जीवन भी निर्मल ते बाहरों भी निर्मल, वो ज्ञान जिंदगी च लैके आ। सतगुरु जी कहते गुड़ कर ज्ञान, ज्ञान गुड़ बना ला। ध्यान कर धावै, धावे कहते महुए के फुलों नूं, अपनी जुड़ी हुई सुरत नूं महुए के फुल बना ला। कर करनी कस पाइए, विच किकर दे सक पाउंदे सी ओ जोगी लोग कढ़न लगे। तो गुरु नानक साहब कहते अपनी करनी नूं, अपने करैक्टर नूं, अपने किरदार नूं सक बना ला। कर करनी कस पाइए, भाठी भवन, ऐस भवन नूं, ऐस शरीर नूं भट्ठी बना ला। प्रेम का पोचा, प्रेम नूं पोचा बना ला। तो फिर क्या होएगा? इत रस अम्यों चुवाई है। ये सारे जिहड़े तेनों मैं गल दसी है जो रल जाणगे ना, इन्हां चों एक रस टपकेगा, वो रस पे मन पीवेगा। जिवें शराब निकलती मुड़ के बंदा पींदा है, तो ये पी के बंदा गल करन जोगा रहिंदा ही नहीं। जदों आ नशा पीवेगा ना, फिर की आएगा? बाबा मन मत वारो नाम रस पीवे। बोलो बाबा मन मत वारो नाम रस पीवे, सहज रंग रच रहया। जदों ये मन आ रस पीवेगा, फिर ऐनस बनी। ऐनस ऐ कहते दिन नूं, निस कहते रात नूं। ओ जोगी लोको, तुहाडा नशा ते रात पीना सवेरे लै जाना जिहड़ा मैं दस रहा, ये ऐ निस बनी
दिन रात लथना ही नहीं। ये नशा दिन रात बोलो जी लथना ही नहीं। अच्छा कमाल की गल, जिहड़ा नशा तुसीं पीना ये मटीरियल बाहर पिया, ये समान बाहर पिया ते मुल आउणा। जिहड़ा नशा तुहानूं मैं दस रहा दा सारा मटीरियल ही बंदे दे अंदर पिया, ते एक भी रुपया बाहरों लाउण दी लोड़। बोलो भाई, कभी किसी ग्रंथी सिंह पाठी सिंह जाके पूछा जी सानूं गुरु ग्रंथ जो पढ़ के सुना, उन्होंने दबका मार के चुप करा देने असीं। जे किते ग्रंथी किसी पिंड च कोई ग्रंथी प्रचारक गल बोल भी देवे, मान लो लड़की वाले सगन लाउण वाले आए आ, उत्थे कोई कह देवे नशे के बारे, तो जिहड़ियां पेटियां दियां पेटियां लिया के रखियां वो हुज्जा नहीं मार लग पे, मैक बंद करो भाई, ये की बोली जाता। क्यों साध संगत जी बोलो, मान लो जो बोल देवे, मान लो कोई रागी बोल देवे कि भाई नशे तो बचो, इन्हें सारी जिंदगी तबाह करती है। जे को बोलता अजे ग्रंथी प्रचारक नूं निजी बेनीफिट कोई नहीं है, वो दस रहा ये जहर ना पियो, ये जहर ने तबाही मचाती। नशा पीण वाले ते बिना नशे वाले बंदे दे शरीर च फर्क वेखियो। नशा ना पींदा होवे बंदा 70 80 90 साल तक भी उहदे चेहरे दा ग्लो, उहदा उठना बैठना, उहदे शरीर दी फुर्ती वेखियो। ते नशा पी के बंदा तुसीं वेखो उहदी उम्र वेखो, उहदे शरीर दा किन्ना ऐ हुण नहीं पींदा जी, हुण डॉक्टर ने रोकता है। ਇਹਦਾ मतलब डॉक्टर उदों रोकता जो शरीर का सत्यानाश वजदा है। साढ़े गुरु ने पहला रोकता भी तेरा शरीर खराब होवे ही ना, तेरा शरीर तंदुरुस्त रहे। एक चीज़ जिंदगी च नोट करियो, किसी ने सानू इन्हां माड़ियां कामां तो नहीं रोकना, सानू खुद आप रोकना। बोलो सारे जी, किसी ने नहीं रोकना। क्यों रोकू जी अगला? तुहानू पता जिहड़ियां तंबाकू कंपनियां वा, इन्हां बारे सर्वे होया पिछले जो पेपर च आया सी, तंबाकू कंपनियां का सर्वे ये दसदा कि वह 15 तो 16 17 साल के व्यक्ति की बच्चे की खोज करते भी वो साडा कस्टमर बने, गाहक बने। वो वड्डी उम्र के बंदे नूं अपना गाहक नहीं बनाते। वो कहते जी अज 50 साल का साडा गाहक बनया, ये 5 7 10 साल इन्हें रहना, पर जिहड़ा 20 22 15 साल का कोई व्यक्ति बच्चा साडा गाहक बनता, जो 60 70 साल भी रहेगा तो कम से कम इन्ना लंबा समा वो सानू कमाई करके देवेगा। इस करके इस गलों सानू बहुत अलर्ट होने की लोड़ है। नौजवानों खास करके परिवारों च निक्की निक्की चीज़ का ध्यान देने की लोड़ है। यदा बड़ा वड्डा नुकसान साडे समाज से होंदा। ते वड्डी गल असीं ये कहने कित्थे लिखिया गुरबाणी च लिखे हुण आ नशा जिहड़ा गुरु नानक साहिब जी कहते बाबा मन मतवारो नाम रस पीवै सहज रंग रच रहया ऐनस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहत कहे। पूरा साज प्याला सहजे तिसे प्याए जाको नदर करे अमृत का व्यापारी होवे क्या मद शूशे पाओ तरे। सिफती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म ना हारै। सिफतां विच रत्ता होया जिहड़ा बंदा ना वो अपने जन्म नूं जुए च नहीं हारदा, वो अपने जीवन नूं सवारदा ते खूबसूरत बनाउंदा। तो गुरु साहब जी ने आख्या सी अपनी जिंदगी जो चीज़ां साड़ दे जाल मोह कस मस कर मत कागद कर सार। अपनी मत नूं पेपर बना ला, भाव कलम प्यार नूं कलम बना ला ते गुर पुछ लिख विचार। बाबा ये लेखा लिख जान जिथे लेखा मंगी है तिथे होए सच्चा निशान। वो लेख लिखा जिहड़ा लेख लिखिया जावे वो लेख तेरा मददगार बने। सज्जन सही नाल मैं चलदिया नाल चलाना जिथे लेखा मंगी है तिथे खड़े दसा। असी कई बार कहने ओ मेरा मित्र है, ओ मेरा मित्र है। साडे असली मित्र पता कौन? साडे गुण सत गुण है, संतोख दया धर्म धीरज, ये साडे असली मित्र वा। औगुणा नूं बाणी च दुश्मन आख्या नानक अवगुण जे तड़े। हे नानक जिन्ने भी औगण ने ते गली जंजीर, जिन्ने औगण होनियां जंजीरां। जे गुण होवण तां कटियन से भाई से वीर। आपी ने भोग भोग कै, आपी ने भोग
भोग है मन ने। होए पसमड़ पौर सिधाया वड्डा होवा दुनीदार। ਵੱਡੇ ਦਾ अर्थ पता की है? जिवें किसी का कोई बजुर्ग चढ़ाई किया हो, आप नहीं कहते उन्हें वड्डा किया, बई पा वड्डा हो गया सी, चढ़ाई कर गया सी, उन्हें वड्डा किया। इत्थे वड्डे होने का अर्थ है इस मन विचों हुण सच की विचार निकल गई, ये हुण वड्डा हो गया, खत्म हो गया। क्योंकि मन अंधे जन्म गवाया ना। ये आसा की वार की 3 नंबर पौड़ी है, 464 नंबर अंक है गुरु ग्रंथ साहिब जी का, जिहड़ी रोज़ गुरुद्वारे में सवेरे साडे ग्रंथी सिंह, पाठी सिंह, रागी सिंह गाउंदे आ। मन अंधा जन्म गवाया आपी ने भोग भोग कै। होए पसमड़ पौर सधाया वड्डा होवा दुनीदार। गल संगल तत चलाया। हुण जो बंदा मारी गया, चढ़ाई कर गया, शरीर का आप लकड़ा ते रख के संस्कार किया, हुण संगल किहदे गल च पैना जी? शरीर तो साड़ा है आप। इत्थे गल बंदे दे मन की हो रही है, तो मन के गल विच संगल किहड़ा पिया? नानक अवगुण जेतड़े आ है संगल। 33 गणी जंजीर जे गुण होवन तां कटियन। सारे बोलो। से भाई से वीर वड्डा होवा दुनीदार। गल संगल कत चलाया अगे अगले जन्म च नहीं, आने वाले समय च। जिवें धी नूं पेके घर नहीं कहीदा, धीए गुण सिख ला सहुरे घर अगे काम, इदां कहने आपां। पुत्त कुछ गुण सिख ला अगे तेरे, उहदा अगे दा मतलब की हुंदा भला? सहुरे घर भी आटा गुनना सिख ला, सब्जी बनानी सिख ला, कपड़े प्रेस करने सिख ला, बोलना सिख ला। जे घर च माँ की गल का माड़ा माड़ा गल का गुस्सा करे तो कई बार वड्डे कहते ना, जे माँ की गल नहीं सुनती तो सोचो सहुरे घर जाके सस की गल किदां सुनूगी। जे माँ की गल का इन्ना गुस्सा किया जिन्हें पैदा किया है, तो सहुरे घर तो बड़ा मुश्किल हो जाना भाई। उत्ते पर समझाते आ नहीं धीए। एक बेनती करा, भाई गुरदास जी कहते हैं जो धी पेके घर आउंदी है उदों लाडली मनी जाती है। नहर कहते पेके घर में, नहर कुवार कन्या लाडली के मानियत। मान लो जे लेट भी उठू तो माँ ने कहना कोई गल नहीं मेरी लाडली धी आ। जे कोई काम, एक बेनती होर करा, मेरिया भैणां बैठियां ने, अज तक धी नूं आटा गुन्नना नहीं आउंदा, मान लो सब्जी बनाउणी नहीं आउंदी, चाह बनाउणी नहीं आउंदी, किसी काम दा नहीं पता, मान लो कदी माँ ने किसी गवांढण नूं जाके किसी रिश्तेदार नूं कहा मेरी धी नूं सब्जी बनाउणी नहीं आउंदी, वो जे नहीं भी आउंदी तां भी तारीफ करूँगी। वो साडी धी ते आटा भी गुन लैंदी आ, सब्जी भी बना लैंदी आ, चाह भी बना लैंदी आ, हुण तां तंदूरे रोटियां लाउणियां भी, मक्की दी रोटी भी बना, इदां कहंदियां ना। अच्छा, जिहड़ी नूंह है उन्होंने भावें सब कुछ आउंदा होवे, अगली गल हुण तुसीं बोल दो। हाँ जी, धी नूं मान लो जे कुछ नहीं भी आउंदा, अज तक मैं तो नहीं इदां दी माँ वेखी जिहड़ी अपनी सकी भैन नूं कहंदी होवे मैं बड़ा जोर ला के वेखिआ इहदे कोल तंदूरे रोटी लगदी नहीं, इहनूं ते मकई दी रोटी बनाउणी आउंदी, कहा कदी? अच्छा, मान लो जे धी सब्जी च नमक वध पा दे, मिर्चां वध घट पा दे, जां मिठा घट वध चाह च पा दे, कदी माँ ने गवांढ नूं जाके कहा जां गुरुद्वारे किसी बीबी नूं कहा होवे कल चाह बनाई निरा जहर पिया ता? नौ बारे तो फोन पर भी दस देना जाके रिश्तेदारों को, सानू जहर ही पेई जाती है, अं कितों बचना दोवां जियां ने। हम डॉक्टरों का खंड ना खाओ, लप भर के खंड जी पा देंदी है। कदी घरां दे बखेड़े सही नहीं हो सकते। जिद्दां धी बारे सोचते हो उदां नूंह बारे सोचो। तो नूहां नूं मेरी बेनती हुंदी है, भैणां नूं, मैनूं याद आ ये पिंड मोगे दे लागे चूड़ चक, गल 2005-6 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅਸੀਂ कैंप लाया उस पिंड विच, ते उस स्कूल विच बच्चे काफ़ी सी। असी प्रिंसीपल साहब नूं कहा कि साडा स्टाफ सारा बच्चों नूं पढ़ाउंदा, तुसीं सानूं अपने टीचर दे दो, असीं तुहाडे टीचरां दी क्लास भी गुरमत दी लाउने आ।
ਉਹ ਆਂਦੇ बहुत वधिया गल है जी। वो स्कूल काफ़ी वड्डा सी, उन्हें हम टीचर दे ते असीं टीचरां नाल गुरमति विचार कर लग पे। उन्हां विच एक हिंदू भैन सी स्कूल टीचर, उन्हें कहा जी वीर जी मेरा एक सवाल है। तो मैनूं ये लगदा सवाल उस कल्ली बीबी दा नहीं सी, सवाल कोई बोले ना बोले बहुतात साडे समाज विच साडीआं भैणां दा आम हुंदा है। ਉਹਦਾ सवाल की सी, ਜਿਹੜਾ मेरा घर वाला है ना, कहंदी मेरी सੱਸ नाल बड़ियां सलाह ही पैंदा, जदों उन्हें काम तो आउणा मेरी सੱਸ नाल ही गल्लां बातां करनियां। मैं कहा भी तुहाडे नाल भी गल्लां बातां करदा ना, तुहानूं भी कपड़े मिलदे आ, तुहानूं भी खाना पानी पूरा मिलदा है ना, जे करदा ते मां नाल गल्लां करनियां ने, पुत्त मां नाल ना गल्लां करे ते किहदे नाल करे। पर वो भैन बार बार एक गल ते आवे भी नहीं, वो जदों मैं वेखां अपनी मां नाल ही गल्लां करदा हुंदा, मां नाल ही गल्लां करदा हुंदा। ਉਹਦੀ बड़ी पुछ पड़ताल करूँगा, पहले सवेरे उठ के पूछूगा बीबी ठीक आ, बाजार जाऊगा ਉਹਦੇ हत्थ कपड़े लैके आऊगा, माँ की बहुत देखभाल करता। मैं कहते गुण वा तुहाडे पति च गुण है। मैं कहा मैं एक सवाल करा हुण भैणे तुहानूं, कहते पूछो। मैं कहा तुहाडा पिछे परिवार पेके कौन कौन है? कहती मेरा एक भरा है। मैं कहा तुहाडा भरा तुहाडी माता दे कोल ना बवे ते माँ अपने अंदर दा दुख भला किहदे नाल साझा करदी है? बोल के दस्सिओ। धी नूं कहेगी ना भी तूं अपने भरा नूं थोड़ा बहुता, ते तुसीं उदों फिर अपने भरा नूं की समझाओगे जाके भी माँ दे लागे बोलो भैणो माँ की देखभाल करिया कर। उदों तुसीं अपनी माँ अपने भरा नूं समझाउणा कि मेरी माँ नूं पुछिया कर। ये गुण तुहाडे पति तां कुदरती पैदा होया। पता क्यों मैनूं की कहंदी? कहंदी वीर जी हाँ तो गल कदी मैं सोची नहीं। मैं कहा तुहाडे किन्ने बच्चे आ? कहंदी एक बेटी एक बेटा। मैं कहा कल नूं बेटा भी विआहणा है, जे वो कल तुहाडे कोल ना बैठा तुहानूं पुछिया भी ना उन्हें, तुहानूं आ दित्तियां, इहनूं कहंदे हत्थां नाल दित्तियां गंढां, बोलोगे मूँह नाल खोलणियां, जी कहो जी कहाओ। जिद्दां दी खूह च आवाज़ मारोगे उदां दी बैक आवाज़ आएगी। कुछ नहीं होया दुनिया नूं, थोड़ा अपने आप नूं बदलण दी लोड़ है, अपने आप नूं जानण दी लोड़ है, अपने आप नूं सुधारन दी लोड़ है। कोई लाची कोई लौंग कोई उतों फूका मरा के ले आवे, कुछ नहीं होना। अवदेशों में किन्ने इश्तिहार छपदे ने, नौ सस दी नहीं बनती, प्यो पुत दी नहीं बनती, मुकदमा नहीं जिते साढ़े कोल आओ। सतगुरु जी भगत कबीर जी कहते बंदे जे तेनों किसी ने परेशान किया या तू किसी गलों परेशान है, तेनों मेरे को आउण दी लोड़ नहीं, तू अपने आप नाल गल्लां करनियां शुरू कर। बंदे खोज दिल हर रोज ना फेर परेशानी वाहे। बेद ते इफ्तरा भाई दिल का फिक्र ना जाए, टुक दम करारी जाओ करो हाजिर हजूर खुदा। बंदे खोज दिल हर रोज ना फेर परेशानी माहे, ए जो दुनिया शेर मेला दस्त दस्त कहते हाथ में गिरी ना है, हाथ च आने वाला कुछ भी नहीं, एक जादू की खेड है। ये जो दुनिया शेर मेला दस्तगिरी ना है। तो गुरु पातशाह जी समझाते ने नाम ना जानिया राम का, तू नाम नहीं जानिया राम का। हुण वेखो जे राम ही नाम सी ते नाम ना जाने राम का दा क्यों कहना पिया? इसदा मतलब इत्थे किसी दशरथ दे पुत्र राम की गल नहीं हो रही, रमे हुए परमात्मा की गल हो रही। जदों गुरबाणी विच राम शब्द राम लिए आएगा उदों रोवे राम नकाला पिया होएगा। रावण सेती सरबर होई घर की जोए गवाई थी। गुरु ग्रंथ साहब जी में जो राम शब्द रमे हुए हुण इसे करके तो भगत कबीर जी ने कहा सी सियासी लोग उन्हां दियां वोटां लैण लई इन्हां तुकां दियां वरतों जाके कर दिंदे आ। ते वेखो जी गुरु ग्रंथ साहब विच भी राम शब्द भगवान राम लई लाया, इस करके सारे सिखां दी आस्था दशरथ दे पुत्र राम उत्ते हैगी है। साडी राम उत्ते शरधा विश्वास, पर वो किहड़े राम ते? वो रमे हुए परमात्मा दे उत्ते। बाणी ते भी लिखिया वो धन राम बेन बाजै। जिहड़ा राम है बंसरी वजाउंदा सी, वो धन धन राम बेन बाजै, बंसरी ते कृष्ण वजाउंदा सी। राम नूं तुसीं कदी बंसरी वजाउंदे वेखिया? किसी रमैन च बंसरी ते कृष्ण वजाओ, वो धन धन राम बेन बाजै। इहदा अर्थ है उत्थे बेन का अर्थ की है? हुक्म रूपी बंसरी उस अकाल पुरख राम वाहिगुरू दी हर वक्त वज रही है। कबीर राम कहण मैं, सारे बोलो कबीर राम कहण मैं
राम कहण च एक भेद है, केड़ा? तामे एक विचार, सोई राम सबे कहे। एक वो राम है जिन्हों सारी कायनात याद करती है, तो सोई कौतकार एक वो आ जिहदियां रामलीला खेड़ी जाती। आ फर्क है। हुण असीं गुरबाणी विचार के नहीं पढ़ी, इस करके असीं उन्हां दीयां गल्लां विच आ जाने। तो सियासी लोगों को इहो बार बार कहीदा, वो तुहाडा काम वोटां मंगणियां, तुसीं वोटां मंगो। जे तुहानूं बाणी बारे नहीं पता तो तुहानूं इधर गल करन दी कोई लोड़ नहीं है। देखो डॉक्टर भी हुंदे आ ना, हड्डियां दा वखरा, ब्रेन दा वखरा, हार्ट दा वखरा। हुण जिहड़ा डॉक्टर ब्रेन दा है, उन्होंने हार्ट की प्रॉब्लम आ जाए, उन्होंने हार्ट वाले डॉक्टर को जाना पैना, भावें खुद आप डॉक्टर है। हुण मान लो एक अखां दा डॉक्टर है, कल वो दंद च प्रॉब्लम आ गई, जाता ना खुद आप दूजे डॉक्टर को, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं मेरा अपना एक विषय है। लीडरां नूं ये बेनती भी जे तुहाडा विषय वोटां मंगणियां तो तुसीं वोटां मंगो, गुरबाणी नूं तोड़ मरोड़ के पेश करके गलत विचार समाज विच ना फैलाओ। पिछे जे दिल्ली का लीडर सी ना, यूट्यूब पर वो पई हुई है, जिन्हें स्टेटमेंट दी सी कि गुरु ग्रंथ साहिब जिहड़ा 2533 बार राम शब्द आया, ये भगवान राम वास्ते आया। तो उन्हें आ तुकां पढ़ियां सी, ना वो मरे न ठागे जाहे, जिनके राम वसै मन माहे। तो मैं बंगला साहब तो भी ये गल का खंडन किया कि भाई तुहाडी आस्था हो सकती है, तुसीं वोटां लैणियां, साडी आस्था तो उस एक अकाल पुरख ते है जिहड़ा जम्मण मरण तो रहत है, जिहड़ा है पी होसी जाए ना जासी, रचना जे न रचाई। इस करके नाम न जानिया राम का, नाम नहीं जानिया राम दा, रमे होए परमात्मा दा। मूड़े हे मूर्ख, देखो ये मूड़ा शब्द, ये प्यार वाला शब्द। जिवें घर च ना प्यो नहीं कई बारी दादा पुत्त नूं ओ मूर्खा, वो दुश्मनी दे नाल नहीं कह रहा, गुस्से नाल नहीं कह रहा, वो प्यार च कह रहा, उन्होंने सुधारना चाहता है। गुरु साहब जी जो प्यार चाहते हैं ना, वो इदां दे शब्द अपने पुत्र नूं आम ही बोल देंगे ने, ओ पुत्रा तू नाम नहीं जानिया राम दा, मूड़िया किहड़े कमां च पै गया। नाम न जानिया राम का मूड़े, फिर पाछे पछताहे रे, पछताएगा बाद विच, ते बाद विच पछताउण दा तैनूं कोई लाभ नहीं होना। बंदा पछताउंदा कदों? साध संगत जी ध्यान नाल सुणिओ, जदों काम विगड़ जे। गुरु रामदास जी का वाक है, बाहर वेड़ा डठा, वेड़े दे विच मंजा डठा, ते बापू जी बैठे आ मंजे दे उत्ते, पोतरा लागे उहदी लंघ रहा, ते दादे ने पोतरे नूं आवाज़ मारी, कहंदा पुत्रा इधर बह मेरी मंजी ते, जिन्हां नाल तू तुरिया फिरदा है मैं इन्हां दियां पुराणियां पीढ़ियां नूं जानदा। पुत्र मेरी बहुत वड्डी उम्र है, मेरा अपने तजर्बे चों गल दस्सण लगा, मैनूं तेरे बाप तो पता लगा कि तू जिन्हां नाल वपार शुरू करता, जिन्हां नाल तू बिजनस कर रहा, वो बंदे चंगे नहीं मेरे बच्चिया, तू रोटी खानी है सही किरत कर। ये गल कहने कही दादे ने अपने, सारे बोलो, पोतरे ने। पोतरे नूं जवानी का जोश है, उन्हें अगे शब्द बोलिया, आंदा बापू तुहानूं कपड़े पाउण लई वधिया मिलदे आ, जुत्ती लीड़ा वधिया मिलदा, खाना तुहानूं वधिया मिलदा, तुसीं अपनी जिंदगी के दिन बतीत करो, तुसीं साडी जिंदगी दखल ना दिओ, मैं किहदे नाल मिलना, किहनूं नहीं मिलना, किहदे नाल वरतना, किहदे नाल नहीं वरतना, ये हुण तुसीं मैनूं दसोगे। बच्चे ने जवानी के जोश च शब्द बोल दिते, पर दादे के दिमाग च एक शब्द आया, कहंदा अगों पिछों जदों कोई रिश्तेदार आउंदा तू भज के दादा जी करदा, जे मैं तेनों कोई चंगी सिक्ख्या दी है तो तू मूँह वट के परां तुर पैना, कोई गल नहीं। दादे ने आख्या मौज पुत्रा, मेरा फर्ज है, मेरे मन से बोझ नहीं रहेगा कि मैं तेनों कुछ दसिया नहीं, मैं दसता मेरा बोझ लै गया, हुण मनना ना मनना तेरी मर्जी। बच्चा गया, उन्हें कारोबार शुरू किया, 5-6 सालों वो गल हुई जिहड़ी दादे ने उन्होंने कही सी। अज मूँह जा उदास करके बैठा है। दादे ने फिर पोतरे नूं आवाज़ मारी, कहंदा आ जा की गल है। आवाज़ मार के अपने मंजे ते बिठाया, तो ढिला जा मूँह करके फिर शब्द बोले पोतरे ने, कहंदा बापू वो गल हुई जिहड़ी तुसीं मैनूं, उच्ची बोलियो जी, कही सी, तुसीं मैनूं जिहड़े काम तो रोकिया सी ना, मेरा उन्होंने बड़ा वड्डा नुकसान करता जिन्हां नाल मैं तुरिया फिरदा सी।
ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਸਤ ਭਾਉ ਨਾ ਦਿਚੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਅਕਲ ਦਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸੁਣੀ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਆਖਿਆ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਵਿਗੜੀ ਗਿਆ ਮਗਰੋਂ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਆਖਿਆ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਫਿਰੈ ਮਨ ਮੁਖ ਵਿਚਾਰਾ, ਗੱਲੀ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਲੋਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਾੜੀ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਗੱਡੀ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਗੱਡੀ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਡਾਕ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਹੋ ਜਾ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਜੇ ਹੋ ਜਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਖੱਬੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਜਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਸੱਜੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਹੋ ਜਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੰਘ ਲੈਣ ਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਚਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਖਲੋ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੱਠੀ ਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਹੋ ਜਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸੀਸ ਨਵਾ ਦੇ। ਚੌਂਕ 'ਚ ਨਾ ਖਲੋ, ਨਾ ਤੂੰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ ਮੜਾ ਹੈ, ਮਸਾਨ ਨਾ ਜਾਈ ਵੀ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਉਧਰ ਜੋਗਾ ਤੇ ਨਾ ਉਧਰ ਜੋਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾ। ਸੇਮ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਮਾਲਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਲਕੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੌਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਇਹੋ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰਮਾਲਾ ਚੜਾਤਾ ਨਾ ਵਧੀਆ, ਪਾਲਕੀ ਬਣਾਤੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕੀ ਪੀਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਪਿਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਣੀ, ਦਾਜ ਮੰਗਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਢਿਲਾਇਆ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਲਮਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਆਂਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਹਦੀ, ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ। ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ। ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਜੋਗ, ਖਿਨ ਮੇ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ, ਨਾਮ न जानिया राम का मूड़े, फिर पाशै पछताहे रे, रहन गवाई, बोलो रहन गवाई सोए कै रात सौ के लगाती, दिवस गवाया खाए, दिन सवेरे उठदिया सारी भट्ठी बल पैंदी घर च, सवेरे रसोई च अग बल पैंदी, रात सौण तक अग बलदी रहिंदी, आह बना लो आह बना लो आह बना लो, खाण पीण रात सौ के लंघ गई। हीरे जैसा जन्म है, इनू हीरे वर्गा पता क्यों आख्या, इन्ना कीमती हैगा। बंदा कई बार कहता मैनू रब ने की दिता, एक दंद टुट जाए डॉक्टर को दंद लवाउण जाइए फ्री लाउंदा कि पैसे लैंदा जी, उच्ची बोलो सास बोलो, पैसे लैंदा ना, ते जिहड़े रब ने इन्ने दंद दिते ते पैसे दिते आपां भला, बोलो गुरु के प्यारे हो। जो बंदा हॉस्पिटल जाता उत्थे उन्होंने वैंटीलेटर ते पा के ऑक्सीजन चाढ़ते हैं, जिन्ने सिलेंडर लगन उसका बिल बनता स्पैशल भी इन्ने सिलेंडर की इनू ऑक्सीजन चाढ़ी है, उसका बिल बनता ना। फिर भी बंदे समझ नहीं आई भी 70 साल रब्बा तुहाडी ऑक्सीजन वरती, एक दिन भी बिल नहीं देना फिर। इत्थे बंदे की बनाई ऑक्सीजन मैनू 2 दिन चाढ़ी, अगलियां ने किड्डा वड्डा बिल लिया के मेरे हथ फड़ाया, जे किते मैं ये हवा का भी बिल दिंदा हुंदा मैं तो मर ही जाना सी। कदी सोच के वेखिया बंदिया, शरीर का एक एक अंग कितना कीमती है। असीं किसी नूं खून दिंदे आ, कदी अपनी बॉडी नूं कहना पैंदा खून बना दे, मैं अज खून की बोतल दी है 24 घंटे च अपने आप ही मेरी बॉडी ने नवा खून बना देना है। पुछ के वेखो ना मरीज़ां नूं जिन्हां दा शरीर दे विच नवा खून नहीं बनता, पुछ के वेखो अपने दुनिया की सारी जायदाद कोई साडे कोलों लै लै, सानू तंदुरुस्ती दे दे रब, ये तेरे दे ते रहमत है मालिक दी। रहन गवाई सोए कै
दिवस गवाया खाए, सारे बोलो, हीरे जैसा जन्म है, कादे बदले जा रहा, कौडी, कौडी बिल्कुल निकम्मी, कौडी बदल जाए, अनंता धन तरनी तरै, अनंत ऐड़ा नन्ना ते तत्ता, अनंता धन, बंदे दे हिरदे विच विषयां वकारां दा अनंत धन पिया होया, जिन्हों कच्चा धन बाणी च लिखिया होया। तो जिथे इन्ना कच्चा धन पहला पिया, सच्चे धन वास्ते की जगह ही है नहीं उत्थे। जिहड़े भांडे विच पहला कोई वस्तु पई है, मान लो एक भांडे च अद्धा पानी पिया, तुसीं उह च दुध पाउणा ते भांडा ते खाली करना ही पऊगा, वस्तु अंदर वस्तु समावे दूजी होवे पास। अनंता धन धरणी, हिरदे की धरती धरै, अनंत ना चाहया जाए, ओड़ा अनंत परमात्मा का धन सच्चा सी, वो किदां अंदर टिकू, क्योंकि कच्चे धन ने अंदर जगह छड्डी कोई नहीं खाली। अनंत को चाहना जो गए, जेड़े उस अनंत परमात्मा नूं चाहण लई तुर पए, अनंत धन प्राप्त कर लई आए, अनंत गवाए, उन्हें फिर अनंत धन अंदरों गवा लिया, उन्हें कच्चा धन अंदरों कढ़ता ते सच्चा धन अपने अंदर समा लिया। आपन लिया जे मिले, जे कला इच्छा की मिलता होवे ना, इच्छा की हुण किहदा बच्चा जज बनया, तो जो जज बनता बच्चा कहता तो अपने वाल वेख के तो अपना दिल भी करता साडा बच्चा भी जज बने, सोचने नाल थोड़ा बनना, उहदे वर्गी पढ़ाई करनी पैनी। मान लो गुआढ़ी की फसल बड़ी कमाल की निकली आ, जी तो मेरा भी करता इन्नी फसल मेरी भी निकले, पर मैनू उहदे वांगू मेहनत भी करनी पैनी। आपन लिया जे मिले ता सबको पागट होए, किसी के घर जाइए, नौ पुत बजुर्गों के कोल बैठे चंगियां गल्लां करदे होण, जी नहीं करता अपना भी किते इदां दा माहौल साडे घर का भी बने, पर कल्ला चाहण नाल की होना, उहो जिहा माहौल घर विच बनाउणा पैना। आपन लिया जे मिले ता सबको पागट होए, कर्मा उपर निबड़े, नवेड़ा ते अमल ते होना आण के, जे लोचा सबको, लोचा करना की होना, नवेड़ा तो तेरे अमलों ते आण के होना। नानक करना जिन किया, हे नानक जिन्हें करना किया, जिन्हें कायनात सिरजिया, सोई सार करे, जिन्हें पैदा किया सार भी ओह करदा। मेहरबान साहिब मेहरबान, जी सगल को दे दान, तू काहे डोल है प्राणिया, सारे बोलो, तुद राखेगा सिरजनहार, जिन पदाइश तू किया सोई दे आधार, काट काट मालिक दिलां का सच्चा परवरदिगार, कुदरत कीम ना जानिए, वड्डा वे परवाह कर बंदे तू बंदगी, जिचर घट मैं सा, जदों तक तेरे अंदर साह है उदों तक उन्होंने याद कर, जिचर घट मैं सा, तू समरथ अकथ अगोचर, जियो पिंड तेरी रास, रहम तेरी सुख पाया सदा, नानक की अरदास, नानक करना जिन किया सोई सार करे, हुक्म ना जा पई खसम का, ये जिहड़ा हुक्म है ना, ਇਹਦਾ ਭੇਦ नहीं कोई पा सकता, किस वड्याई दे उन्हें किहदे हिस्से वड्याई पाउणी है। तू अपने वालों कर्म करी जा, तू अपने वालों चंगी सोच का मालक बनी जा, चंगे विचार चंगे ख्याल चंगी सोच
ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੜ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਿਰੜ ਨੇ, ਭਰੋਸੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਏ ਗਏ, ਲੰਗਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ। ਗਾਣੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ, ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਢਾਡੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਗੀ, ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਏ। ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੇ, ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਉਹ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਉੱਥੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੀਡੀਆ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਉਗਰਵਾਦੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ PM ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਕੱਠ ਨੇ, ਸਬਰ ਨੇ, ਸਦਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ 3-3, 4-4 ਝੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਪਿਓ ਕਿਸੇ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵਿਆਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪੜਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਵਿਆਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰਾਂ ਨੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਜੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰਾਂ ਨੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਮਨਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੂੰਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਭੈਣੋ, ਵੀਰੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਠੰਡੇ ਦੀ ਪੌ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰਾਂ ਨੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।